another episode of Times Now's Election Yatra, the Bihar edition. I'm Pratibha Chandran and today we are in yet another swing district. So we are in the Simhanchal region, which is considered to be a big challenge or a big headache for the BJP. This region has over 40% Muslims across the entire region. But today we are in Katihar district. While there may be a challenge in the other district, this is one district where the BJP has had it in a mixed bag, sometimes good, sometimes bad. So what's the mood this time around? Is it going to complete its, again, 2010 and 2020 performance of 100% strike rate or not? Let's find out. Katihar district, one that has often kept the NDA and the Mahagathbandhan on its toes. This region, after all, has always been difficult to predict and one that has voted in both extremes. In the last 4 elections here, the BJP has managed a 100% strike rate on 2 occasions, the most recent one coming in 2020. But in 2005 and 2015, the BJP only managed to win 1/3 of their seats in Katihar. However, the region's significant Muslim population has made it a difficult one to crack for a party like the BJP. Even if the party did manage a 100% strike rate in 2020 in Katihar, the BJP hasn't had similar success across the entire region. In 2020, the party only managed to win 8 seats in Simhanchal. In 2015, it was even lesser at 6. Their highest tally over the last 4 elections came in 2010 when the party managed double-digit figures at 13. The Simhanchal challenge is one that the NDA is looking to overcome, which is why the Prime Minister also addressed a joint rally just days before the dates were announced. But can this power the NDA to a better performance in Simhanchal, or is the Mahagathbandhan prepared? If there is one man who managed to weather the NDA's onslaught in 2024, it was Congress leader Tariq Anwar, who is now an MP from Katihar. Does he and the Congress party have a plan in place to ward off the BJP? So we are in Katihar and this entire Simhanchal region is considered to be a stronghold of the Congress party. There has been a dent with the AIMIM coming in and there have been some differences within the alliance as well. Today we're going to be speaking to the MP, Mr. Tariq Anwar, joining us on the show. Thank you for joining us. Sir, how is the preparation for the assembly elections? How do you see the Mahagathbandhan performing this time around? बहुत अच्छा करेगी गठबंधन. हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछली बार हम लोग सिर्फ 12,000 वोट से एनडीए से पीछे थे, तो हमें सिर्फ वो 12,000 को मेकअप करना है. और इस बार जो माहौल है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो 20 साल का जो फेलियर है नीतीश कुमार का और एनडीए का, वो हमारे फेवर में है और लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं. लास्ट 20 इयर्स का जो लोगों का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा नहीं है. अच्छा, तो आपने लेकिन कांग्रेस पार्टी का आपको क्या लगता है कि व्हाट इज गोइंग टू द की प्लान, क्योंकि यहाँ पे सीमांचल एरिया में देयर हैव बीन द मैक्सिमम वोटर डिलीशंस. यहाँ से राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाला था, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा मुद्दा होगा यहाँ पर? नहीं, देखिए, वोट चोरी का जहाँ तक सवाल है वो तो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से का डीएनए में है. हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में कैसे चोरी हुई, हरियाणा में कैसे चोरी हुई, बाकी जगहों पे. तो उनकी कोशिश रहती है कि समहाउ किसी तरह से हम पावर में आए. उसको वो अपना एजेंसी को भी मिसयूज करते हैं, जो गवर्नमेंट मिशनरी है उसको मिसयूज करते हैं. तो ये सब उनका सिस्टम है. लेकिन इस बार राहुल गांधी के जो
यात्रा था, वोट अधिकार यात्रा, उससे लोगों में अवेयरनेस आया है, पूरे बिहार में आया है और हर आदमी अलर्ट है कि उसके वोट की चोरी नहीं हो, उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो न छीना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन इन दीज पिटिशंस बट देयर इज नो एविडेंस इन इट। But I'll move on from that and talk about Semanchal area. यहाँ पे once upon a time महागठबंधन was doing really well. 2020 में AIMIM के आने के बाद यहाँ पे बहुत वोट स्प्लिट हो चुका है। इस बार भी AIMIM महागठबंधन में आना चाह रही थी लेकिन गठबंधन नहीं बन पाया। उनके अलग लड़ने से क्या इम्पैक्ट होगा? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस बार। लोगों को पता चल गया पिछली बार अगर हमारी हुकूमत, हमारी सरकार नहीं बनी वो ड्यू टू हिम या उनकी पार्टी की वजह से। इस बार लोग बहुत अलर्ट हैं और पूरा सेकुलर वोट, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, अदर वोट भी दे आर वेरी मच अलर्ट कि मेरा वोट का किसी तरह से डिवीज़न नहीं हो और हम सब एक साथ वोट करेंगे। और इस बार हमको हर हालत में जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बने। तो ओवैसी जी को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप यहाँ पे? अब वो चैलेंज नहीं है और लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अच्छा, बी टीम ऑफ बीजेपी। लेकिन आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि उन्होंने कल कहा है कि अगर महागठबंधन को मैं एक चुनौती देता हूं, उन्होंने कहा है कि व्हाई नॉट गेट अ मुस्लिम सीएम फेस ऑफ महागठबंधन। वो वोट्स चाहते हैं लेकिन कोई एक पोजीशन नहीं देते हैं मुस्लिम्स को। उनको क्या कहेंगे? देखिए, उनका ऐसे ही रहता है क्योंकि हिंदू मुसलमान के अलावा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करना चाहती है उसी तरह से जो ओवैसी साहब की पार्टी है उसका भी वही है। हमने जैसा कहा ना कि दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। एक मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ा रहा है और दूसरा वो हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ा रहा है। तो चाहते हैं कि किसी तरह सांप्रदायिकता करके, किसी तरह पोलराइजेशन करके, किसी तरह ध्रुवीकरण करके हम चुनाव जीत जाए। तो इस बार ओवैसी जी का पूरे बिहार के अंदर कोई गुंजाइश हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। सर, कांग्रेस में आपने भी बात की कि कांग्रेस के जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कंफ्यूजन हुआ था। क्या हुआ था, कुछ बताइए हमें, क्योंकि आपका खुद का कहना था कि जो लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला और जो बाहर से लोग आए हैं उनको मिल गया। देखिए, ऐसा है, जो बात थी वो तो हाईकमांड तक पहुंचा दी गई और हाईकमांड ने भी सब बातों को सुना है और उसका संज्ञान भी लिया है और कहा है कि चुनाव के बाद हम लोग देखेंगे किसके साथ इनजस्टिस हुआ है या नाइंसाफी हुई है, उसको हम लोग दूर करेंगे। तो क्या कांग्रेस के साथ इनजस्टिस हुआ है? पहले 70 सीट्स पे थे, अब और भी घट गई है सीटें, तो महागठबंधन में क्या कांग्रेस के साथ इनजस्टिस हुआ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि हमारे साथ दो नई पार्टियां जुड़ी हैं और एक तो साहनी जी की पार्टी वीआईपी और दूसरी वो IK गुप्ता की पार्टी। तो ये दोनों पार्टी को भी एकोमोडेट करना था। हम लोग चाहते थे कि हमारा जो गठबंधन है उसका एक्सपेंशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े और जो लाइक माइंडेड है उनको सबको साथ ले। तो उसमें हम लोग को सबको एकोमोडेट करना था, तो हम लोगों को भी सीट छोड़नी पड़ी। Thank you for speaking to us. So that's a Congress MP speaking about the issues of Katihar and what the people want. Let's speak to the people as well and find out what is the change that they are looking for in this region. In the 2020 Assembly elections, the Congress fought a tough battle with the BJP here in Katihar. While the BJP managed to win 3 of the 7 seats, the Congress managed 2 and 1 seat went with the Mahagathbandhan ally CPIML. Nitish Kumar JDU also managed to win a solitary seat here in Katihar. When it comes to Katihar, the people here largely depend on agriculture and most of its industries are agro-based. Rice is the main crop, while banana, jute and maize are the chief cash crops of the district. Katihar is also known for the production of makhana, which is becoming a rapidly rising industry here. But with growing industries come growing aspirations, and our netas meeting these aspirations.
So what is the key deciding factor when people are going to cast their vote? In these regions, is the community going to decide who they will vote for, or have people moved beyond the identity politics, and are they going to be thinking about the development and what is the help that is reaching their homes? Let's speak to a few people here to find out what they think. There are many here. I want to speak to some of them to find out what is important to them when they cast their vote. चाचा, आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छा काम किया है या आपके लिए अच्छा काम किया है सरकार ने? सरकार ने तो अच्छे काम किया है। अच्छा काम, किसने हाँ। अच्छा काम किया है? नीतीश नीतीश जी ने अच्छा काम किया है? हाँ, अच्छा काम किया। कैसा बदलाव देखा है आपने यहाँ पर? बदलाव में हम लोग नहीं, हम लोग नीतीश से कहा है। नीतीश का ही? हाँ, ऐसा क्यों? हाँ। उस लालू का काम ठीक नहीं होता है। ठीक नहीं है। हाँ, नहीं। और अभी जो ओएसी जी आए हुए हैं, उनसे कुछ आपको लगता है कि कुछ बदलाव आ सकता है? ओएसी बदलाव नहीं आ सकता है, हम लोग उसी नीतीश को वोट देंगे। बस नीतीश जी। हाँ। आपका नाम? चिंतालाल दास। अच्छा, तो आप सोचे कि नीतीश जी ने जो काम किया है, जहाँ जो विकास हुआ है, बदलाव हुआ है, आरजेडी से पहले जैसा था उससे बहुत बदल गया है? क्या नीतीश ये सब देता है हमको, राशन पानी देता है, चावल देता है, यही सब देता है। अच्छा, राशन वगैरह? हाँ, देता है। अच्छा, हाँ तो मतलब हर महीने आपको मिल जाता है राशन आराम से? हाँ, आराम से मिलता है। मिलता है, तो हाँ। आपको वो पसंद है? हाँ नीतीश जी की सरकार चाहेंगे दोबारा? हाँ हाँ हाँ, नीतीश जी के। तो ये आरजेडी और महागठबंधन, कांग्रेस, इनको नहीं पसंद करते हैं आप? अब रुझान जिसका होगा उसी को देंगे। किसका रुझान है? अभी मालूम नहीं है किसका, अभी ये आम चौल है। आपको कौन पसंद है वो तो बताइए, आपको कौन पसंद? हमको पसंद है तो नीतीश, हमको राशन पानी देता है, उसी का पार्टी को वोट देंगे। बात खत्म। हाँ हाँ हाँ। ओएसी जी का यहाँ पे है कोई, आपको लगता है कि उनका रुझान है यहाँ पर? रुझान सब कोई बोलता है तो देंगे। बोलता है तो देखिए, कौन? उनका दिल में क्या है बोलता है। आप अपने दिल की बात बताइए ना। हम तो कहते हैं नीतीश राशन पानी देता है, हम उसी को वोट देंगे। हाँ हाँ हाँ। नीतीश जी ने अच्छा काम किया है, घर पे राशन आता है, बिजली आती है, उतना काफी है कि आप चाहते हैं कि और कुछ बदलाव हो बिहार में? बदलाव होगा। क्या चाहेंगे आप? बदलाव होगा अब की बार बदलाव कैसा? तेजस्वी की सरकार बनेगी या आपको लगता है कि कोई और नया भी आ सकता है? तेजस्वी। ऐसा क्यों? आपको पसंद है, अच्छा काम करते हैं? युवा है, अच्छा, युवा के लिए सोचेगा। हाँ वो नीतीश कुमार तो क्या होता है 75 पार कर गए, हाँ। इसलिए रिटायर हो गए, क्योंकि 60 साल में रिटायर होते हैं ना सरकारी कर्मचारी, तो 75 पार हो गए। तो बस उम्र की वजह से ही आपको लगता है कि काम भी ज्यादा कर सकते थे कि उनका जब गवर्नमेंट था? उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से, लेकिन अच्छा काम किया है। हाँ, काम किए हैं, काम किया है। ऐसा नहीं कि काम नहीं किए हैं, काम किए हैं बिहार। तो एनडीए को, वो बीजेपी के साथ हैं, उनको आप वोट देना चाहेंगे कि उनका सरकार बने, चाहे नीतीश जी सीएम ना बने, कोई और बन जाए? नहीं, हम लोग ये महागठबंधन को। महागठबंधन? क्यों? जी, महागठबंधन तेजस्वी। और कांग्रेस के साथ है? जी 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 जी। तो यहाँ पे जैसे ओएसी जी लास्ट टाइम 2020 में एआईएमआईएम ने भी अच्छा किया था, इस बार आपको लगता है कि एआईएमआईएम का या ओएसी का अच्छा होगा? नहीं 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 नहीं, इस बार मोहब्बत की दुकान खुलेगी बिहार में, नफरत की दुकान समेट जाएगी। ठीक है बेटा, मोहब्बत की दुकान खुलेगी। तो ओएसी जी की दुकान नहीं है मोहब्बत वाली दुकान? ओवैसी के वो भी नफरत ही वाली राजनीति करते हैं। तो वो लेकिन मुसलमानों की बहुत बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अगर मुसलमान के लिए काम करते हैं तो मुसलमान का सीएम या डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाते? तो आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए एआईएमआईएम है, डिप्टी सीएम रेस में है, बहुत जल्द 14 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन? ओएसी जी आपको कहते हैं, आपको नहीं लगता कि वो मुसलमान समाज की क्या है उनके लिए अच्छा ऐसा सोचते हैं एआईएमआईएम का, ओएसी जी और सादुद्दीन? नहीं, उनके और मोदी में दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही है। सेकुलर पार्टी चाहिए, सेकुलर आदमी चाहिए। Let's go that side as well and find out. It's split here. Some say that ration has reached their homes because of Nitish Kumar. He has done good work and that is what they're going to be looking at. Some also say that they are looking for a change, not OAC, because OAC and BJP are seen as two sides of the same coin. चाचा, आपको क्या लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, सरकार ने अच्छा काम किया है? आप किसको देखना चाहेंगे सरकार में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा काम किया? हाँ, शुरू से नीतीश कुमार है तो निश्चित उसी को देंगे वोट। अच्छा काम करते हैं? हाँ, अच्छा काम करे। क्या तो देर आर मेनी हु ऑल्सो से दैट Nitish Kumar has brought ration to their homes, their food, their water requirements are taken care of, and that's what they need. They don't need anything else. Some, of course, also going on to say
that we need a change. We've seen the Nitish government for 2 decades now, and we need a change in that regard, and that is the reason why they're looking for a change. So it's evenly split here. While some say that we're voting for the Nitish Sarkar, some saying Mahagathbandhan. Here, in this spot at least, it doesn't look like the AIMIM has been able to make much of an impact. Katihar was once known as the jute capital of Bihar and boasted of 2 major jute mills, but the district has since lost its sheen for its jute production. If the NDA wants to have an improved performance here in Katihar, then they may want to change that as soon as possible. But do they have the strategy in place, and can they counter the political challengers who lie ahead? So in the Kadwa constituency, as we go around speaking to the people, let's also get a sense of the fight that has been put up from the NDA side. Now, the former MP, Purva Sansad from here, Dulal Chandra Goswami ji is contesting here in the assembly elections. Let's find out from him. How is the fight looking? Thank you so much for joining us. आपके कैंपेन के दौरान हमारे इलेक्शन यात्रा में आप जुड़े हैं. कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? आपको क्या लगता है कि एनडीए आपके यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और बिहार में कैसा करेगी? देखिए, पूरे बिहार में एनडीए बहुत मजबूती से इंटैक्ट होकर के एक साथ एनडीए के जो 5 घटक दल है, सब हम लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं. और हम ये महसूस कर रहे हैं अपना चुनाव कैंपेनिंग के अलावे कि बिहार के 243 सीट में एनडीए मजबूती से लड़ रही है और हम लोग भारी बहुमत से इस बार बिहार में पुनः आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे. और जहां तक सवाल रहा कटिहार जिला और ये 64 कदवा विधानसभा जिसमें एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अभी आपके साथ आपके चैनल के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं. ये सीट, इस सीट में एनडीए बहुत मजबूती से आगे बढ़ी है और जनता का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जो यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, इन्होंने जनता के साथ न इंटरेक्शन किया, न जन समस्याओं को देखे. मुझे पूरा विश्वास है कि अपार बहुमत से कदवा विधानसभा में ये जो 10 साल का सुखार है, इसको हम लोग समाप्त करेंगे और 64 कदवा विधानसभा एनडीए जीतेगी और बिहार में जो एनडीए सरकार बनेगा, कदवा विधानसभा की भी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहेगी. लेकिन ये जो पूरा रीजन है, जैसे सीमांचल रीजन, जैसे किशनगंज हो गया या फिर कटहरिया या अरारिया डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा माना जाता है कि बीजेपी और जेडीयू यहाँ पे उतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो डेमोग्राफी है यहाँ की ऑलमोस्ट 48% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनडीए ट्रेडिशनली भी अच्छा नहीं किया है. तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या बदलेगा? लोग एक तरफ कहते हैं कि ये माइनॉरिटी बहुल है, 45, 47, 48% जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो एक हो जाएंगे तो हरा देंगे. तो ये बात विपक्ष जब महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जब ये बातें बोली जाती है, तो जब उधर क्रिया करती है तो इधर प्रतिक्रिया भी होगी. आपको क्या लगता है, लास्ट टाइम यहाँ पे सीमांचल में उन्होंने बहुत डेंट किया था आरजेडी और जो महागठबंधन के वोट है, इस बार भी वो अलग लड़ रहे हैं. आपको क्या लगता है कि ये ओएसी फैक्टर यहाँ सीमांचल के पूरे एरिया में कैसा होगा, आपके क्षेत्र में और पूरे सीमांचल एरिया में एआईएमआईएम का और ओएसी जी का क्या इम्पैक्ट रहेगा? हम लोग को भी यहाँ कई सीट पर ओवैसी के उम्मीदवार से तगड़ा लड़ाई है. जैसे बलरामपुर है, कदवा में भी ओवैसी का उम्मीदवार मजबूत ही है. किशनगंज में भी त्रिकोणात्मक लड़ाई है, तो ओवैसी जी को हम लोग कमजोर नहीं कर सकते हैं. तो आखिरी में मैं पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा भी यहाँ कटिहार में चलाया था, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जो राहुल गांधी वो अभी वोट अधिकार यात्रा सीमांचल एरिया में बहुत वोट कटे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? वोटर का मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कब कटा? जो वोटर अधिकार, वो तो एक प्रोपेगेंडा के तहत एक यात्रा किए कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार बढ़े, और उस वोटर यात्रा में तेजस्वी जी के साथ जो व्यवहार किया और पप्पू यादव जी के साथ,
उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हम तो एनडीए का प्रत्याशी है, लेकिन पूर्णिया के पप्पू यादव जी हमारे पूर्णिया से सांसद हैं, उनको अपना गाड़ी में नहीं चढ़ने दे रहे थे। मखाना का खेत में कीचड़ में जब उतरा जाता है ना, तो मोजा पहन के नहीं, उनको ये भी पता नहीं कि कीचड़ में मोजा पहन के उतरा जाता है कि मोजा खोल करके। अब ये उनको कौन बताए, नेशनल लीडर है। मखाना में गए, फोड़ने के लिए बैठे, फूटा भी नहीं उनसे मखाना, तो मुकेश सहनी जी को बैठना पड़ा। तो ये केवल इसलिए आए कि उनका जो यहाँ से जो कांग्रेस विधायक दल का जो नेता है, उन्होंने जो यहाँ जो ठीक से जनता का सेवा नहीं किया, यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा के रखे हैं, यहाँ का सड़क कम्युनिकेशन और लोगों का जिस ढंग से काम करना था जो नहीं किए हैं, उसके चलते जिस तरह से क्षेत्र में घूमना चाहिए लोगों को भरोसे में, वो जो नहीं कर पाए, तो राहुल गांधी जी को कीचड़ में उतार दिए, मखाना फोड़वा दिए, कहीं कहीं जमीन पर उतार दिए। ये जितना प्रयास कर ले, राहुल गांधी आए, बहन प्रियंका गांधी आए, तेजस्वी जी आए, ये सीट उनका बचने वाला नहीं है। जनता ने तय कर लिया है, अब की बार एनडीए सरकार 2025 फिर से नीतीश, और ये एनडीए ने तय कर लिया है, कहीं कोई शंका नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपने हमसे बात की, अभी आपकी कैंपेन चल रही है। Confident that this time around, even in this region, which is traditionally considered a challenge for the NDA, there will be a transformation. In Katihar, the battle largely looks like a four-way fight, with the Muslim vote also giving an opportunity for Owaisi. And with Prashant Kishore looking to add his own element to the mix, the stage is set for a close contest here in Simanchal. So this was our ground report from Katihar in the Simanchal region. This is going to be one of the biggest battles to watch out for, the battle that's playing out in Simanchal. We got you the voices of the people and of the netas. Let's see what happens when the voting day happens. So with that, we sign off with video journalists Mohan Singh and Anil Arora. This is Pratibha for Times Now.